Now 58 students have come. We are starting. So in the last lecture, uh, we studied, we have a look on our syllabus, CO mapping, various modules, and what these modules covers, various types of foundry techniques, then machining, that chip formation, and machining parameters. Then we also have a look on that module 3, which was based on welding. Then the fourth module was based on NTMT, that is non-traditional machining technique like EDM, ECM, plasma arc machining, laser beam machining, like that. Some more methods are there, water jet machining, like that. Then the last module was based on press working and forging, that is that other forming processes. So it's a huge syllabus we are covering in PP1, and step by step we will study these processes. And the very first module we are starting with foundry. Um, we are arranging the syllabus in such a way that first the raw process should be studied, and then the finishing process should be studied. So foundry is a basic process. You are making a pattern, then from that pattern you are making a mold, then you are pouring the molten metal, and you are making the casting. That casting is rough actually, and then it is gone to machining or further processing. So that's why we need to study the foundry first. So we are starting with the foundry first, and the very first topic in that is pattern. Okay, so we are now, I will share that to you. What happened? Oh no, it's not the thing. There is desktop. This is foundry module. Yeah, are you able to see this? Huh? This pattern. Okay, this topic is, first topic is pattern. Anybody, can you able to see this clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And it is very well visible. So font is slightly kept bigger so that boys should not get the problem. Somewhere, wherever is needed, the font is less, but it is made bold so that people should very easily understand that. So the first topic is pattern. What is pattern? Last time we had a glimpse of pattern. So the technical definition of pattern is, pattern is a replica of casting with certain allowances. Uh, a replica of casting means whatever shape, size that casting we want, it's the same thing is there on pattern, because from that pattern only we are making the cavity of the same shape of the casting what we want later on. But certain allowances are given. Why certain allowances are given? Because when you pour the molten metal, it shrinks. So if it shrinks, then what happens? Your casting will be slightly lower size, but we want casting of the exact size as per specification. So certain allowance is given on the pattern. For example, shrinkage allowance, that so pattern is made slightly bigger by giving adding shrinkage allowance, so that if the casting is made slightly bigger and later on it shrinks, so it becomes slightly lesser size and within the your tolerance, within your specification. Like that, various allowances are also there, and that we are going to see. Shrinkage is one of that. Shrinkage, distortion, wrapping allowance, machining allowance. These are various allowances we are later on studying. So that's why the definition, exact definition is, pattern is a replica of casting with certain allowances. Another definition, model of casting constructed such that it forms an impression in the molding sand, so that from that impression we can make the casting. Okay, let's go to next slide. Functions of pattern. What are its functions? Uh, these slides, as a teacher, these slides I have prepared, and various points I have covered. On these questions are asked in university exam till today.
So exam point of view also it is very 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 important. That's why the slides are so arranged that all these questions in the exam till now from 82 I have studied everything and that is all incorporated in this slide. Means the slides are prepared very recently by adding many things. No? You can add in these slides, so you can delete some slides and other things that can be done. So that facility is there. That's why we have done that. And this is the new slides in this Corona period I have made. It is for you. Other thing, these things are will be given to you in PDF format and other notes. Yesterday I have given you many notes. Have you got those notes? Please, anybody can share me. Yes, sir. Yesterday I have given many word notes, and you go through all that. Means on the Saturday, Sunday you go through that. वो बड़ा कीमती मटेरियल है एंड नथिंग इज एक्स्ट्रा एवरीथिंग यू विल ऑब्जर्व इन योर मॉड्यूल मॉड्यूल का सिलेबस लेके ही बैठना हाँ हाँ इसके ऊपर क्या क्या है हाँ, ये है एंड व्हाट इज दैट हाँ, तो यू शुड हैव सम आइडिया मैं तो सिखा ही रहा हूँ यहाँ पे दैट इज नॉट द प्रॉब्लम बट यू विल हैव प्रायर टू कमिंग टू द सेशन you will have some idea and then you will understand it better. Huh? So we are saying functions of pattern, molding the gating system. Yeah, definitely we are forming the mold using the pattern, then establishing a parting line. Yeah, some patterns are in splitted about the parting line. One is one half and another is another half, and that parting line is so what happens? One part surface of the pattern that base will decide the parting line. उसके ऊपर एक अलग बॉक्स रहेगा और दूसरा सरफेस रहेगा उसका अलग बॉक्स रहेगा दोनों बॉक्स बाद में हम लोग ज्वाइन करेंगे वी विल ज्वाइन द टू बॉक्स of course pattern will be also splitted in the two halves so establishing a parting line okay making cores okay so core making what is core basically see when you have a pattern then that pattern you will insert in the molding sand and you will make the casting but if casting is hollow तो casting का hollowness कैसा तैयार करने का so what happens is when you put the pattern and wrap the sand you will form a cavity now that cavity if we fill by molten metal you will have one opaque full structure but if we want some cavity in that casting, what happens? We have to make some core. Core sand is different. So that core we will put in that cavity. So what happens? When you fill the molten metal, that core will not allow that much portion to get it filled. Later on आपको तो core भी निकालना है और आजू बाजू का molding sand भी निकालना है. So remainder will be what? Casting with that hollowness. Which portion will be hollow? That middle portion which is made by core because core sand is also collapsible later on it can be broken so when you see the videos and other things you will come to know so time being you remember all these things making cores this is function of pattern so वो core बनाने के लिए भी एक पैटर्न चाहिए so that's why पैटर्न का फंक्शन वो भी है कि making cores minimizing casting defects definitely pattern should be such design that casting defects should be minimized because when you pour the molten metal it should reach up to the farther part आप पैटर्न बनाते टाइम में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे कि कोई पार्ट एकदम कम क्रॉस सेक्शन वाला है और आपका मोल्टन मेटल उधर बहते बहते ही थम जाएगा रुक जाएगा तो व्हाट विल हैपन your molten metal will not be able to reach up to the end part of the casting and that will be underfill ये एक डिफेक्ट माना जाता है whenever we see the defects you will find underfill is one of the defects so that will be a problem so your casting should be such that your pattern should be so designed that entire portion should be properly filled okay then providing economy in molding okay extra material should not be poured inside because later on you have to cut that portion then again it will be resent to the cupola for remelting and other things. So wastage of material that is avoided in providing economy in molding. And pattern should be such that your casting will go to near net shape. आपको बाद में मशीनिंग थोड़ा सा करना पड़े उसके लिए इतना ज़्यादा अलाउंसेस मत रखो कि 10-10 mm तो आप बाद में मशीनिंग करके घास करके निकल रहे हो
So that should not be there. So as accurate as possible pattern should be, so that your it comes to near net shape, and so that only for finishing portion some machining allowance will be given. So that depend upon pattern making. I have seen pattern making in Kirloskar when I was a graduate training engineer. I have worked for that in between vacational training course I have done for 2 months vacation. After tea, I saw all this thing. Pattern making is a work of skill, very skilled people. So skill is necessary for making pattern, particularly when curvatures are there, and those curvatures are in various planes, means three dimension. Then it is needed. So various machines are there, jig boring machines are there, CNCs are there now. No problem. You can give that controls, etc. But there are two things: pattern designing and pattern manufacturing. ये दोनों तो पैटर्न सेक्शन ही एक अलग रहता है ये बड़े फाउंड्रीज में. एंड लेटर ऑन देन व्हेन दैट पैटर्न इज मेड देन मोल्डिंग और पोरिंग वो सेक्शन अलग रहता है. सो ये पैटर्न बनाना थोड़ा सा ब्रेन का काम है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी उसके लिए लगता है, क्योंकि अलग अलग अलाउंसेस वगैरह इसमें बहुत है. ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. मटेरियल कौन सा यूज करता है ये पैटर्न बनाने के लिए? वुड इज वेरी फेमस. कभी कभी मेटल्स भी यूज करता है. वुड का अगर आपको सुटेबल नहीं लग रहा है कभी कभी, या वो पर्टिकुलर शेप अगर आपको नहीं मिल रहा है, क्रॉस सेक्शन अगर वुड का उतना अगर नहीं मिल रहा है आपको, या ज़्यादा मशीन आपको ज़्यादा पोर्शन मशीनिंग सॉरी कट करना पड़ रहा है वुड का, तो आप थोड़ा सा नियर नेट शेप में एक रफ पैटर्न बना के ये रॉ मटेरियल बोल के पैटर्न के लिए यूज कर सकते हो. सो एल्यूमिनियम इज वन, then cast iron is also there. Brass can also be used for pattern making. For special casting processes, polystyrene is also used. So in very few processes it is used. Die casting के लिए वगैरह polystyrene बाद में यूज होता है. जनरली वुड बहुत फेमस है. वुड और भी कुछ मटेरियल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह इधर है, उधर थोड़ा सा दिया उन्होंने मटेरियल. वुड वुड का प्लस पॉइंट्स क्या है वो भी दिया है इधर. यू कैन सी दैट, यू कैन रीड योरसेल्फ. इट्स वेरी वेल चीप, इजीली अवेलेबल, राइट. लेकिन इसमें फिर वही हो रहा है, नेचर का आपका डिप्लीशन हो रहा है, सब जा रहा है सब. तो वुड के बजाय हम दूसरा भी ले सकते हैं. वुड ऑफ कोर्स इज बेटर. नेचर इज नेचर, नेचुरल के लिए कुछ लिमिट ही नहीं है. लेकिन वुड का भी प्रॉब्लम होता है, मॉइस्चर इफेक्ट वगैरह वो पकड़ता है. आप लोग टिक वुड तो यूज नहीं कर सकते, टिक वुड कितना महंगा है, और ऐसे काम के लिए यूज करोगे तो ठीक है. Because that red color teak wood, when it is fully seasoned, it will not get moisture. It is very nice. But when accuracy is there, then some moisture will be there in wood. So even that much is avoided. तो उसको बाद में प्रॉपरली ड्राइड वगैरह करना पड़ता है. सीजन दे आर सेइंग, बरोबर है. सीजन टीक वुड इज having full strength. If you see the white teak wood, then it is not fully seasoned, so it can get moisture. So the problem may come. Some other पाइन वुड एक्सेट्रा वो हिमाचल में मिलता है ना, वो पाइन बड़े बड़े हाइटेड वो पाइन है. पाइन, मोहगनी, साल, ये सब उधर मिलता है. देवदार, ये सब उधर पहाड़ी एरिया में है. ये सब अपने एरिया में ये वुड्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे. So these woods actually on more, and they are used for making pattern. Other material we will see. एक मिनट, yes, मेटल में आपको क्या फायदा है? These are some advantages. Getting durability, strength. वही पैटर्न आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है बाद में कास्टिंग ये करने के लिए, बनाने के लिए, मोल्ड बनाने के लिए. आपको रिपीटेटिव ऑर्डर है, तो आप वुड के बजाय मेटल को जाओ, क्योंकि आपका रिपीटेटिव ऑर्डर है. किर्लोस्कर में मेटल का एक पैटर्न बना था फॉर सिलेंडर हेड, सिलेंडर लाइनर, और ब्रेक ड्रम फॉर ट्रक, brake drum for Tata truck. For that they have made metal pattern, because the order was frequent. अभी आया 6 महीने में, तो और 6 महीने बाद आएगा, और 3 महीने बाद आएगा. तो ड्यूरेबल है, तो इन दैट केस यू गो फॉर मेटल.
तो आपका ऑर्डर कितना फ्रीक्वेंट है उसके ऊपर वो डिपेंड है, एंड अदर थिंग्स आर वेरी वेल एक्सप्लेन हियर. So now this is next characteristics of pattern material. So these slides I have taken from internet and rearranged them, क्योंकि वो वैसे के वैसे लेने के बाद बहुत कुछ मिसप्लेस होता है. इसको प्रॉपरली मैंने ये कर दिया इसको, और अलग अलग ये बहुत अच्छा स्लाइड है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैटर्न मटेरियल. यू नीड नॉट मेक इट बाय हार्ट, खाली एक बार ग्लिम्स देख लेना. वो पहले वाला जो पोर्शन है वो आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि इट्स question answer type. But whenever these charts and tables I am giving, it is for your reference. Means this is real core knowledge. It is not expected that you should make by heart or all, that you can understand at this level now. So machinability, okay. Machinability, wood ka is E, excellent. G is for good, F is fair, and P is poor. So you can see that. These properties are given. तो हमको हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा प्रॉपर्टी में ज़्यादा जरूरी है वो देख के हम लोग ये मटेरियल सिलेक्ट करते हैं. सो दैट जस्ट गो थ्रू दैट. आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ मैं ये. देखो बच्चों, रेजिस्टेंस टू करोजन, ये अपना स्टील का पोर है, कास्ट आयरन का पोर है. तो करोडेड जो एरिया है, जैसे मुंबई वगैरह, इसमें स्टील का केयर लेना कितना मुश्किल हो जाएगा. सो उसमें हम लोग एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, वुड ऐसा प्रेफर कर सकते हैं. मतलब हमारा एरिया करोजन एरिया. अभी देखो हवामान कितना बेहतर है. बारिश आती है तो ठीक है, अगर बारिश नहीं आता तो एकदम करोडेड होता है. हमको भी डिजीनेस फील होता है कैसा, मतलब तो वो मटेरियल को भी करोडेड एनवायरनमेंट रहता है. सो इट इज लाइक दैट. तो एक एग्जांपल, स्वेलिंग. स्वेलिंग में ये जो है पुअर है वुड. अगर बारिश के दिन में पर वुड, हम बोलेंगे करोजन के लिए अच्छा है, लेकिन वुड ये होता है, स्वेल होता है. देन विच इज बेटर फॉर मुंबई एरिया. ये अच्छा है ना. ये अच्छा है पर्याय अपने को. एल्यूमिनियम ये भी अच्छा है. एक एग्जांपल आपको बताया मैंने. ये ओवरऑल सब हमको देखना पड़ता है. ये देखो, ये मुंबई एरिया में ये बहुत सुटेबल है. अपना जो करोडेड एरिया ना, फुल फुल वेट वेदर है. तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया. स्ट्रेंथ वाइज भी आप देख सकते हैं, अलग अलग वेयर रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप. ऐसा बाद में अगर मशीनिंग बहुत है उसके लिए तो मशीनेबिलिटी के लिए भी चेक करता है. देखो, मशीनेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक इज वेरी गुड. एल्यूमिनियम तो बहुत ही फेमस है. एक तो एल्यूमिनियम सॉफ्ट है, वो इजी टू मशीन है. माइल्ड स्टील मशीन करने से तो अच्छा है, 3 times डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए. जल्दी से हम लोग प्लस एंटी करोज है. तो बहुत एल्यूमिनियम बहुत फेमस है फॉर मेकिंग पैटर्न. We will see the next slide. We are going to types of patterns. So this is single piece pattern. Now here, this is single piece pattern. This is pattern. Okay, this is pattern, and this pattern is kept in one box. Then, so this is parting line actually. This is known as parting line. This is cope box, and this is drag box. This is the special nomenclature, special terminology for foundry. Cope means top half, drag means lower half. Cope and drag box, they will make your molding box. So this is entire molding box. This is cope half, drag half. कोप और ड्रैग हाफ के जो सरफेस रहता है उसमें 4 जगह आपको 4 पिन मिलेंगे. 4 कॉर्नर पे 4 पिन मिलेंगे. एक में ऐसा प्रोट्रूडेड रहेगा मेल पीस, दूसरे में वही फीमेल पीस रहेगा. तो वो पिन कोप हाफ के वो जो 4 पिन है वो ड्रैग हाफ के 4 होल में बराबर बैठ गए तो समझने का कि योर आपका फिटिंग परफेक्ट हो गया. नाउ इन द कोप हाफ देयर इज अ पोरिंग स्क्रू. ये पोरिंग स्क्रू यानी ये स्क्रू इज नथिंग बट वेल. ये फाउंड्री के स्पेशल टर्मिनोलॉजी है. पोरिंग स्क्रू. पोरिंग मतलब हम पोरिंग करने वाले ना मोल्टन मेटल, तो ऊपर का ये थोड़ा सा स्क्रू यानी अपना क्या कहते हैं हम लोग उसको, फनेल टाइप थोड़ा सा रहता है. ऐसा नरसाड़ा बोलते हैं ना हम तो, नरसाड़ा जैसा जैसा वो स्क्रू फनेल टाइप थोड़ा शेप रहेगा.
so that molten metal should not come out, or should not flow away and damage the cope and draper. That's why ये ऐसा ऐसा भरेंगे हम लोग, so that ये यहाँ से यहाँ तक वो ओपनिंग आना चाहिए. एंड व्हेन यू फील दिस कैविटी, ये कैविटी आप कैसा तैयार करेंगे, पहले पैटर्न रखेंगे मोल्डिंग बॉक्स में, पहले पैटर्न रखेंगे और हम सैंड उसमें ऐसा दबा के भरेंगे. we will pour the we will fill the sand, we will press the sand and we will remove the pattern. When we remove the pattern, then that cavity will be formed. Now when this cavity is formed separately, this pouring screw is also prepared by some means, and then when this cavity is formed and this is also formed, then we will fit that too. Now this cavity is ready for filling, other things are full of sand, and now we will pour the molten metal and we will get the casting. Okay, so this is a single piece pattern, that is one piece pattern. तो ऐसा दूसरे भी है, स्प्लिट पैटर्न्स आर आल्सो अवेलेबल, तो ये स्प्लिट पैटर्न भी अवेलेबल है सर. हाँ बोलो. ये अगर मोल्ड एल्यूमिनियम का है और मोल्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मोल्ड एल्यूमिनियम का नहीं, आप पैटर्न बोल रहे हो क्या? हाँ सर. नहीं नहीं, पैटर्न तो रिमूव किए तो करते हैं ना बाद में बेटा. मैं एक आपको एक मिनट, ये जो है ना, ये होने के पहले मैं तुमको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊं क्या? ये एक आइडिया आएगा, हम फिर से आएंगे और टाइप्स ऑफ पैटर्न से चालू करेंगे. ओके, सो वी विल हैव दैट आइडिया. तो मुझे वही, क्योंकि जब मैं क्लास में रहता हूँ तो आपको पूरा वो एक्सप्लेन करता हूँ इसमें ड्रॉ करके. यहाँ पे अभी वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा. आई हैव दैट, आई विल शेयर दैट. जस्ट अ मिनट, गो टू डेस्कटॉप है ना, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ. आई हैव सर्टन वीडियोस. E1 knows first module, casting defects. Yeah. Find notes latest. Just a minute. Casting defects, centrifugal casting, getting system casting. हाँ. Now, boys, are you able to see this? दिख रहा है ना आपको सब बराबर? Sand casting animation we will see now. Okay. See here. Hello, are you able to see this? Please answer. Yes sir. हाँ देखो Yes, sir. देखो, हाँ देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है देखो आप यहाँ. हाँ these are molding box. ये पिन से दोनों बिठाया, देखो ये मोल्टन, ये हमने ये किया. अभी तुम्हारा आंसर हम मिल जाएगा कि वॉट एवर पैटर्न मटेरियल यू यूज, वी आर रिमूविंग दैट पैटर्न लेटर ऑन. ये जस्ट अ मिनट, स्टॉप करने का कहाँ है, मेरा फुल स्क्रीन आ गया इसमें. यूट्यूब वाला नहीं है वो, मेरे इसका वीडियो है ये. जस्ट अ मिनट. तो दिस इज फिनिश्ड पार्ट. ये देखो ये दो बोर्ड है. ये बोर्ड पे आपने आपने पहले सबसे पहले क्या, पैटर्न्स आर मेड फॉर टॉप एंड बॉटम हाफ. ये देखो ये जो है ना, ये ऐसा पैटर्न, ये पैटर्न बना है, तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न है. अब पैटर्न के ऊपर हमने क्या डाला, मोल्डिंग सैंड डाला, मोल्डिंग सैंड डाला और उसको प्रेस किया. अभी हमको पैटर्न निकालना है, हमको क्या करना है, पैटर्न निकालना है इससे. हाँ, ये क्या पैटर्न निकल गया, पैटर्न निकल गया और कैविटी तैयार हुआ. अभी उस कैविटी का क्या लेना देना, मतलब किसी टेम्परेचर का, क्योंकि एल्यूमिनियम तो पैटर्न बनाने के लिए हमने यूज किया, वो उसका इसके साथ कुछ ताल्लुक ही नहीं है, बिकॉज वी हैव मेड द कैविटी एंड देन मोल्टन मेटल इज पोर्ड. हैव यू गॉट द आंसर? यस सर. हाँ, बिकॉज आप पैटर्न बनाने के लिए एल्यूमिनियम यूज करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करो, और कोई प्लास्टिक यूज करो, वुड यूज करो, सेम शेप होना चाहिए. आपने ये क्या रिमूव किया,
जो मोल्टन मेटल पोर करने के लिए जो यूज किया था वो उतना कट करके रिमूव किया, और बीच का पोर्शन आपका जो पैटर्न का था वो, ये स्प्लिट पैटर्न है। अभी आप देखोगे स्प्लिट पैटर्न है। ये देखो, एक हाफ इधर, एक हाफ इधर है, और ये जो हाफ है ना ये ऊपर का हाफ है, यानी कोप हाफ, कि जहां से आपको पोर करने के लिए एक कैविटी चाहिए, तो वो कैविटी बनाया है। हाँ? आप बोलेंगे वो दो क्यों है, ये भी उसका आंसर देता हूँ। एक साइड से आप फिल करोगे तो वो दूसरे साइड से जब बाहर आएगा तब आपको इंश्योर करेंगे हम लोग की पैटर्न कंप्लीटली फिल हुआ है। अदरवाइज आपको मालूम कैसे पड़ेगा वो एंड तक गया है। तो यहाँ से फुल भरो, और वो पूरा दूसरे साइड से बाहर आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा यहाँ यहाँ आना चाहिए। हाँ, अंदर पूरा कैविटी भरा है। हैव यू गॉट इट बच्चों? यस सर। हाँ, और एक हम लोग सर सर हाँ, फिर से देखो ना, फिर सर एक छोटा डाउट, जब ये हम लोग डालते हैं तो जब हाँ निकालते हैं तो कुछ प्रोडक्ट चिपकता नहीं है सर कैविटी के अंदर, मतलब हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये क्यूरोसिटी जब बढ़ती है तो क्वेश्चन आते ही है ना। दैट्स व्हाई द यस सर। मोल्डिंग सैंड शुड हैव दैट प्रॉपर्टी। तो हम वो तरफ देखने वाले हैं अभी। हाँ, तो ये जो ओके मोल्डिंग ओके सर। सैंड है, ये मोल्डिंग सैंड, एक मिनट, हाँ, मैं ये निकाल देता हूँ अभी। हाँ, अभी अभी आए इस ड्राइंग में, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। ये भी एक सिमुलेशन है। हाँ हाँ, ये भी एक अच्छा है। थोड़ा बड़ा करो बच्चों। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दो, क्या रहने दो, दिखता है ना? देखो, थोड़ा बड़ा बड़ा सर। बस बड़ा। हाँ, ये देखो। पोप हाफ, ड्रैग हाफ। पोप हाफ में ये दोनों रहेगा स्क्रू। हेलो हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो। हाँ सर वो कूल हो गया वो कैसे पता चलता है? वो मेटल पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कूल होगा और वो। हाँ, करेक्ट। सॉलिडिफिकेशन बिहेवियर ऑफ ईच मेटल इज नोन टू यू, सो दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द ओ, फाउंड्रीमैन, कब कूल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये कूल होना आपके कास्टिंग के इसके हिसाब से, शेप के एंड साइज। अगर आपका ज्यादा स्टॉक है तो पहले बाहर का सरफेस कूल होता है और बाद में अंदर अंदर। एक सिंपल एग्जांपल, अर्थ कूल होना चालू है सालों से, कहाँ कूल हो गया है? पहले सरफेस पे। हाँ? अंदर अभी भी हीट है ना। सो इट इज अ वेरी बिग साइज। सॉलिडिफिकेशन बिहेवियर, कंडक्शन ऑफ मटेरियल, कन्वेक्शन ऑफ मटेरियल, बहुत स्टडी है बेटा। ओके ओके। सर हैंग हो गए क्या? सर सर हैंग हो गया शायद, नेटवर्क कनेक्शन गया रहेगा। अच्छा, तन्मय कैसा है? मस्त, तू बता। कैसा चल रहा है? बाहा बाहा चालू है वही अभी। मैं भी वही पढ़ रहा था, हाजरा ही पढ़ रहा था, प्रोडक्शन का। सर लीविंग। तुम लोग का क्या चालू है सर का पढ़ाई में? लाइट गया। तन्मय इस हाँ, बार 10 लाएगा। तन्मय तेरे पास पीडीएफ है क्या सबका? सबका नहीं है, होगा कुछ कुछ होगा। बुक्स मेरे का है, पास मैं है। भेजता हूँ। पीडीएफ भेजो ना रहेगा हाँ तो। ग्रुप पे भेजो ना मेरे। हाजरा का पीडीएफ नहीं है किसी मेरे पास बुक है। क्या यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये टाइम तन्मय मिलेगा तेरा तो बना ना तन्मय। इलेक्ट्रिक बन गया क्या? क्या क्या? गाड़ी इलेक्ट्रिक बन रहा है? इलेक्ट्रिक नहीं बन रहा है, 4 व्हील ड्राइव बना रहा है, मतलब डिजाइनिंग चालू है। निसर्ग गैलेक्सी आइडिया लेना। हाँ हाँ श्योर। बस उठाओ अभी। 4 व्हील ड्राइव क्या फॉर्मूला कर रहे हो? क्या एग्जैक्टली क्या कर अभी रहे हो? 4 व्हील ड्राइव हम लोग कंपलसरी है 2023 से, इसीलिए कर रहे हैं। रणील शट अप। ओ भाई, ओ बॉय। अपना अपना डीवी है ना कंपलसरी। शट अप ब्रो। जो लोग के कुछ मुंह बंद करने बोल रहे प्रणील। ऐसा है क्या? क्या हुआ मिथुन? मिथुन दादा आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है।
हेलो थर्मोडायनेमिक्स। सर का कॉल आया था। सर के वहाँ पे लाइट गया है तो थोड़ी देर में ज्वाइन हो रहे हैं, तो कोई छोड़ो मत ग्रुप को। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। ठीक है आराम से। सर ने तेरे को कॉल कैसे किया? अरे वो कल मेल भेजा। अरे कल मेल दिया था कि कोई एक भेज दो, फिर मैंने नंबर भेज दिया था, ऐसा अच्छा। कुछ हुआ तो। तो तन्मय तुम लोग को ये ईवी कंपलसरी नहीं है ना अभी, मतलब? नहीं, ईवी और 4 व्हील ड्राइव में चॉइस था तो हम लोग ने 4 व्हील ड्राइव सिलेक्ट किया। Nice, nice. थर्मो कौन बैठ रहा है? अरे बैठते तो सब है दोस्त। ध्यान चालू रख के छोड़। ध्यान की बात पर्दे के पीछे कोई नहीं होता रे। कंबोज कर भेजता हूँ मैं, रुक। क्या है? मिथुन राम मंदिर के लिए एक्साइटेड? Oh, so much, bro. सुबह से न्यूज़ चल रहा है मेरे कुछ घर पे बोलो तो। मत, कुछ बोलो मत। मिथुन उधर ही रहेगा, मिथुन जाता प्लीज नहीं प्लीज। फिर। मोदी जी कुछ के पीले कपड़ों के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे न्यूज़ एंकर। अरे सब वहाँ सुनो, इकट्ठा अगर हो गए। अगर अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो भाई साहब, Oh shit. आर्यन है क्या? आर्यन भाई चैट में आर्यन? इसलिए पूरा अरे देश ने हमेशा प्लान गया रिकॉर्ड हो किया नहीं है, जाएगा। रहेगा। हमेशा इसलिए गया नहीं है। डोवल घर पे आएगा तेरे इसलिए पे। हमें आर्यन से आर्यन को ही अरे पता रहेगा ये सब, अपने को नहीं आर्यन ने पता। पीरियड उड़ाया वही है। आके से पूछो। प्लीज मेरे से बात मत कर, मेरे को नहीं बोलने का कुछ। ओ भाई नहीं तो पाकिस्तानी बिजली गिर जाएगी पत्थर के ऊपर। अबे वो बेरूत का वीडियो देखा ना भाई? आर्यन का प्लान सक्सेसफुल हुआ बेरूट के लिए। तन्मय तेरे पास अगर इसका रीडिंग मटेरियल है पी का तो भेजना। और सर ने तो कल ईमेल किया था ना एक सेट ऑफ थिंग्स। हाँ, व्हाट्सएप हाँ पे कुछ भी, भेजता कोई हूँ। भी पीडीएफ रहेगा तो भेजो ना यार। भेजता। तन्मय तूने जो मेरे को वो पीडीएफ भेजा था तुम लोग का रूल्स का, उसके अलावा तुम लोग का कुछ है और? नहीं, और तो कुछ है नहीं, रूल्स वही है, अभी अपडेट हुआ है। लाइक ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत। सब भेज दो, वीडियो वो सब। वो सर ने जो भेजा कल? हाँ, नहीं नहीं, रहेगा ना मेल में सब लोग के पास? मेल में तो है। वर्ड हाँ तो डॉक्यूमेंट तो है ना सबके पास, वर्ड डॉक्यूमेंट है। हाँ तो फिर हो गया ना। कल आई गेस सर ने किया था। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी नाउ। हाँ हेलो देखते बच्चों। हेलो बच्चों। यस सर। हाँ आ गया बाबा लाइट। ये तुम्हारा प्रोफेसर ऐसे एरिया में रहता है खड़कपाड़ा कल्याण, कि जहाँ आई एम फुल्ली टेस्टेड फॉर माय पेशेंस। इसको मैंने कल सर एचओडी इकडे को। पण गेले कल्याण आहे। हाँ कल्याण लाईट कल्याण गेले मध्ये सर, आता कल्याण गेले गेले सर लाईट। हाँ नहीं, आता गेले सर. personally I am considerate of all these things, but we have to explain our superiors. That is our major thing. Yesterday I have wrote to our HOD also, उनसे कुछ जवाब नहीं आया ये मामले में। मैं उनको लेकर अनयूजुअल सिचुएशन, ये अपना जो रिकॉर्डिंग आया ना, रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा सा वो गैप आया, बट रिकॉर्डिंग आई कैन नॉट स्टॉप। व्हेन लाइट इज गॉन आई कैन नॉट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में ये भी आता है लाइट गया वगैरह। आई डोंट थिंक अटेंडेंस में आता है, नहीं आता है, लेकिन इसीलिए मैं आपको बोला कि आप लोग ऐसा ही रहो और एट द एंड ऑफ द सेशन ये सब उसमें आ जाएगा। आई डोंट नो अटेंडेंस में आता है कि नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग में आ जाता है। रिकॉर्डिंग का बाद में मेरे को मेल आता है ना, तो उसमें अपना सब प्रूफ है, तो डोंट वरी, यू आर ऑल देयर। एंड सबका अटेंडेंस वगैरह हम एट द एंड ऑफ द सेशन ये करेंगे, ओके? नहीं तो बार बार हर एक सेशन का 2 बार अटेंडेंस लेना पड़ेगा, बीच में एक बार डर के और बाद में एंड में। इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट चलो ठीक है। वी विल कोई गया नहीं ना भैया? आप अभी आपका कोई गया नहीं ना स्टूडेंट? अगर कोई इधर उधर नहीं गया सर। तो उसको हाँ चलो बुलाओ नहीं उनको। सर। हाँ ये अपने लिए फ्रिक्वेंट रहेगा बाबा, खड़कपाड़ा कल्याण। कल्याण है बाबा हमारा। चलो हाँ, हम लोग अभी फिर से अपलोड करते हैं। वो कहाँ गया वो वीडियो स्क्रीन? हाँ सैंड कास्टिंग सिमुलेशन है ये, थोड़ा सा हम फिर से देखेंगे। हाँ ये देखो वो वुडन पैटर्न था ना, उसके ऊपर बाद में सैंड हमने डाला और उसको रैम किया। हाँ
रैम करना जरूरी है। ये देखो, कभी बचपन में जुहू के किनारे वगैरह या नदी किनारे आप गए होंगे, तो आप लोग भी कभी कभी वो सैंड ऐसा जमा करके अंदर से ऐसा ये निकलते हैं ना मटेरियल, दैट इज नथिंग बट यू आर मेकिंग मोल्ड कैविटी, बट दिस इज स्पेशल सैंड। इसका थोड़ा समय बाद में आपको इसका कॉम्पोजिशन वगैरह बताता हूँ। ये सैंड नेचुरल सैंड ही है। अभी ये उसने मोल्टन मेटल डाला, दिस में व्हाइट कलर मीन्स इट में भी एल्यूमिनियम मोल्टन मेटल, सो एल्यूमिनियम का कास्टिंग आपका बनेगा। ये देखो, ये ऊपर का हिस्सा, नीचे वाला ऐसा ही सेम इसका रिप्लिका था 2 पार्ट में। बाद में उन्होंने ये कोप हाफ जो है ऊपर का, वो निकाला। हाँ, वुडन पैटर्न डाला, बाद में रैम किया, सैंड सैंड रैम किया, इसको 2 पोर्शन निकाल दिए। अभी ये पैटर्न भी निकाला, पैटर्न भी निकाला, अभी कैविटी तैयार हुआ। उसको फिर से उल्टा किया, अभी वो कैविटी तैयार है। अभी मोल्टन मेटल डालो। लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट कौन से तैयार हो गए अपने, वो जो 2 पोर्शन है ना फिल करने के, वही एक्स्ट्रा है ना। हाँ, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो निकल दिया। तो ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। बच्चों समझा प्रोसेस, समझा आपको पोरिंग सर प्रोसेस? सर सैंड को स्टिफ करने के लिए सैंड भी हीट करना पड़ता होगा ना? हाँ, और नहीं सैंड को हीट हीट करना मतलब ऐसा है कि जब पोरिंग करते हैं तो नियर बाय सैंड ऑटोमेटिक हीट हो जाता है ना, और सैंड चिपकता नहीं है। समझो, सैंड का जो पार्टिकल है ना वो चिपकता नहीं है मोल्टन मेटल को, वो ऑलरेडी ड्यू टू कंडक्शन डायरेक्टली हीट होता है, और वो हार्ड हार्ड होता ही है वो। और उसमें कुछ बाइंडर्स रहता है, उसमें बाइंडर डालते हैं हम लोग सैंड में, तो वो सैंड ऐसा हो जाएगा कि वो इसमें मिक्स नहीं होगा, आपके मोल्टन मेटल में मिक्स नहीं होगा। और एक चीज है, वेन एवर यू आर कूलिंग द मोल्टन मेटल, वो कूल होने के बाद ही हम उसको निकाल रहे हैं ना, तो वो उसमें मिक्स नहीं होने देता उसको। और सैंड सैंड में बाइंडर डालते हैं हम लोग, बेंटोनाइट नाम का, बेंटोनाइट और सोडियम सिलिकेट, ये जो बाइंडर है ना, ये बाइंडर की वजह से वो सैंड मोल्ड है ना, वो एकदम पक्का होता है। आप मोल्टन मेटल डालने के बाद वो ऐसा सैंड के टुकड़े अंदर गिरना वगैरह ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए सैंड के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग आप देखेंगे, क्योंकि आपसे अभी क्वेरी आ रही है, तो इट इज वेरी राइट टाइम टू गो टू द सैंड प्रॉपर्टीज। तो हम लोग अभी इसमें जाएंगे। तो मैंने ये डेस्कटॉप पे निकल के ही रखा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, इसलिए देखो मैंने डेस्कटॉप पे निकल के रखा है, मोल्डिंग सैंड। एक मिनट, मोल्डिंग मटेरियल, ये मोल्ड मटेरियल कौन सा होता है, ये देखो, सिलिका सैंड ग्रेन्स, क्ले, बाइंडर, एंड थोड़ा सा पानी उसमें डालते हैं, वाटर एज अ मॉइस्चर की, उसका पूरा सा हम ये बनाते हैं सिलिका सैंड ग्रेन। उसका सब कॉम्पोजिशन वगैरह दिया, कल जो नोट्स भेजे ना बच्चों आपको, तो उसमें ये सब है। तो ये सब है, उसमें अलग अलग टाइप है, राउंडेड ग्रेन्स, सब एंगुलर ग्रेन्स वगैरह वगैरह। तो ये सब है, क्ले और बाइंडर उसमें डालते हैं, वेस्टर्न बेंटोनाइट, सदर्न बेंटोनाइट, ये भी मतलब अलग अलग एरिया से जो परचेस करते हैं उसमें हम लोग लाते हैं बाइंडर। फायर क्लेस भी डालते हैं। ये सब का है ना, ये क्लेस जो है, ये क्ले और ये जो सैंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल है ना ये, इसलिए मोल्टन मेटल में ये मेल्ट नहीं होता है, ये खाली गर्म होगा, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा। तो ये इसका देखो, ये आपका फॉर्मूला, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्टर्न बेंटोलाइट एंड सदर्न बेंटोलाइट। तो इसकी फॉर्मूला और केमिकल कॉम्पोजिशन भी हमने दे दिए, उसके प्रॉपर्टीज भी दिए। आप आप कोई भी यूज सकते हैं, कैल्शियम और सदर्न बेंटोनाइट यूज कर सकते हो, या सोडियम और वेस्टर्न बेंटोनाइट भी यूज कर सकते हो। उसका सब ऑकरेंस कहाँ पे मिलता है, देखो ये जो है ना, ये वेस्टर्न वाला कहाँ मिलता है, भावनगर कच्छ, इसमें मिलता है। देन कैल्शियम बेंटोनाइट जोधपुर। सदर्न क्यों बोला है क्या मालूम है, जोधपुर तो ऊपर है, नॉर्दर्न होना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला होगा। सदर्न क्यों क्यों बोला है मालूम है, सदर्न, जोधपुर तो ऊपर है। एनीवे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको भी सॉल्व नहीं होती है, और किसको पूछना ये भी मालूम नहीं होता है एट आवर लेवल। ओके, so certain things are there. Anyway, now we will see other this thing. ये इसका प्रॉपर्टीज कहाँ गया, एक मिनट। ये जो मैंने निकाला है मोल्डिंग सैंड का, ये हुआ कंपोजिशन हो गया। वी विल सी इसका प्रॉपर्टी हमको कहाँ मिलता है। आई विल गो टू माय नोट्स, P1 notes, just a minute, casting so many found P notes,
ये कहाँ है PP1 पैटर्न एंड कोर में फिटिंग सिस्टम डाई कास्टिंग फॉन्ट नोट्स ये नहीं सॉरी कल आपको दिए थे वो नोट्स वो कहाँ गए कल कौन से दिए ये तो नहीं दिया ना PP1 पैटर्न हाँ यही है मोल्डिंग मटेरियल मोल्डिंग सैंड था ये मोल्डिंग मटेरियल थोड़ा सा देखता हूँ ओपन करके ये तो वही है ये हमने अभी देखा देन मोल्डिंग इसका बनाया था मैंने जस्ट अ मिनट लेट मी चेक इट देन by mistake I think the two portions are coming close to each other ये बाद में आपको देते हैं हम लोग ये वर्बली तो थोड़ा सा बताता है टोटल 8 प्रॉपर्टीज है उसके बहुत फेमस है वो फर्नेस फंक्शंस ऑफ पैटर्न लेट्स सी इसमें भी नहीं है तो एनीवे आई विल सर्च अच्छा हुआ कि ये बात करते करते अभी मालूम पड़ा नाउ आई विल कम टू यू आई विल एक्सप्लेन विथ ऑल दैट पीपीटी हाँ ये थोड़ा सा पैटर्न का हम चल रहा था बीच में ही एकदम एक बच्चे की क्वेरी आई कि मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी वो कैसा होना चाहिए तो मोल्डिंग सैंड सबसे पहले चाहिए कोलेप्सिबल बच्चों सुन रहे हैं ना आर यू गेटिंग दैट क्योंकि सो मच ट्रांजैक्शन होगा इधर उधर आर यू गेटिंग हाँ यस सर यस सर हाँ तो प्रॉपर्टीज देखो मोल्डिंग सैंड के कौन से होने चाहिए आपको अभी कॉम्पोजिशन दिखा है it should stick to each other whenever pouring is happening. It should not collapse when you are due to buoyancy effect. But it should be collapsible when hammered. तो collapsibility is important because आपका कास्टिंग तैयार हो गया फॉर एग्जाम्पल आफ्टर पोरिंग ये सब तैयार हुआ लेकिन बाद में ये अगर ये निकला ही नहीं तो इसलिए वो सैंड को आपने हैमर से मारने के बाद वो सैंड निकलना चाहिए तो रिमेनिंग थिंग इज ओनली कास्टिंग सो कोलैप्सिबिलिटी देन परमिएबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोल्टन मेटल है 1530 डिग्री आपका मेल्टिंग पॉइंट है स्टील का और आपको 2000 डिग्री तक क्यूपोला में उसको हम लोग हीट करेंगे लैडल से वहां से हम लोग लैडल इज अ बिग पॉट जहाँ पे हम फर्नेस से उसमें वो मोल्टन मेटल पोर करेंगे वो लैडल लेके क्रेन से हम आएंगे और मोल्डिंग बॉक्स में हम डालेंगे इतने सब पोर्शन में मटेरियल ठंडा होता है तो हम तो इतना ठंडा नहीं होना चाहिए कि वो बाद में पोरिंग होते टाइम एंड तक जाए क्योंकि 1530 तक अपना स्टील का मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे अगर आने लगा तो हो सकता है कि बीच में आके थम जाए जैसा लावा कभी कभी बीच में आके रुक जाता है ना और वो अलग अलग शेप तैयार होते हैं सो इट इज लाइक दैट इट इज वन टाइप ऑफ लावा ओनली बट ऑफ हायर टेम्परेचर लावा का कुछ 800 1000 1200 तक होगा टेम्परेचर लेकिन इसका तो 1530 से ज्यादा और हम लोग थोड़ा सा ज्यादा उसको हीट कर रहे हैं सो दैट इट शुड नॉट कूल तो सॉलिडिफिकेशन प्रॉब्लम न आ जाए इसके लिए प्रॉपरली मोल्ड फिल हो जाए इसलिए 2000 तक डिग्री तक हम लोग इसको हीट करते हैं हाँ तो उसका जो इफेक्ट है और वो सब तैयार होने के बाद देयर आर सो मेनी फ्यूम्स एंड गैसेस व्हिच आर क्रिएटेड अगर वो गैसेस और फ्यूम्स बाहर नहीं निकलेंगे सो देयर विल बी रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्योंकि वो अंदर के अंदर दब जाएंगे कास्टिंग के अंदर और बहुत से डिफेक्ट्स पैदा होंगे जैसे पोरोसिटी गैस पॉकेट्स दे मे बी इंटरनल स्ट्रेस रेजर्स इंटरनल स्ट्रेस और रेसिडुअल स्ट्रेस रेजर तो वो सब गैसेस वगैरह बाहर निकलना जरूरी है इसका मतलब हम जो भी मोल्ड हम तैयार कर रहे हैं इट शुड बी पोरस it should allow the gases and all impurities to go out so porosity is very very important collapsibility as I told refractory means it should withstand high temperature molten metal आया वो molten metal को मेल्ट होके किधर भी भागने दो I will not get melt means that sand particle SiO2 तो वो इसलिए वो यूज होता है सैंड यूज होता है नहीं तो अपन दूसरा मिट्टी इधर का उधर का
कुछ भी हम लोग यूज कर सकते थे। हाँ, तो देन बाइंडिंग एबिलिटी, it should bind to each other, so that proper shape should be formed. Then flowability, it should be easily flown at the area, मतलब हम लोग कास्टिंग बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बीच में वो सैंड जाके बैठना मांगता है ना, तो हम लोग जब सैंड डालेंगे तो वो इधर गिरेगी, बाद में कोई भी एरिया में वो जाके बैठना चाहिए, तो it should be flowability. So these are various properties of this sand. You can later on, I will check some more properties are there, and that I will ready-made notes I will give you. मैं पहले देखता हूँ मेरे वो कहीं दूसरे इसमें वो गया है क्या वगैरह, क्योंकि मैंने एंटायर बंच आपको कंट्रोल शिफ्ट करके पूरा भेज दिया है, उसमें कहीं तो होगा, अगर नहीं होगा तो you tell me. That's why I told there specifically, you go through the syllabus, check it and ask me कि ये नहीं मिला तो I will give you. I have somewhere with me in old version, वहाँ से मैं डेस्कटॉप में लेके आया, उसमें शायद रहा होगा वो, so it happens. So feedback is important. Student feedback I always take, because student के पास जाना जरूरी है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, ये important नहीं, student should understand. So that is about molding sand. और वो मोल्डिंग आपने अभी एनिमेशन देखा, so you know पैटर्न किस तरह काम आ जाता है, लेकिन ये पैटर्न भी अलग अलग टाइप का रहता है, तो वो कौन सा रहता है ये देखो। हाँ, बाय द वे अपना टाइम कब तक है बच्चों, कब तक हमको ये करना है? 11:32। आपको कब तक बोला है? 12:30 ना, तो आगे आपको यही है ना, ब्रेक ही है ना? हाँ सर। हाँ, मतलब थोड़ा ये 15 मिनट पहले बंद करने को बोला था, लेकिन ये केस में वो जरूरी नहीं ना आपको, क्योंकि आपको दूसरे लेक्चर को नहीं जाना, बराबर है? तो मैं एक काम करता हूँ, 12:20 हो गए फिर भी अभी 12:30, तो और एक 5 मिनट में ले लेता हूँ। तो आपको बाद में लंच के लिए वगैरह जाना है, बाद में दूसरे प्रैक्टिकल के लिए बैठना है। टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, तो ये हो गया सिंगल पीस, ये हो गया स्प्लिट पैटर्न। जो अभी जो एनिमेशन में हमने देखा ना, वो स्प्लिट पैटर्न था, एक हाफ में था, दूसरा दूसरे हाफ में था, ये सिमिलर शेप था। देखो ये देखो, ये ऊपर के केस में ये फील करने के लिए, और दूसरे साइड से भी था, वो साइड में राइजर इफेक्ट था, और वो इन गेट थोड़ा सा ऐसा इधर यहाँ पे ऐसा वेल टाइप रहता है, सो दैट इट शुड एंटर हियर, यहाँ से ऐसा फील होता है और यहाँ से यहाँ पे एंटर होता है, तो यहाँ से वो इक्वली सब जगह फील हो जाए, और सामने भी ऐसा एक शेप सेम सामने भी रहेगा, तो यहाँ से जो मोल्टन मेटल डाला है वो ये कैविटी में जाके यहाँ से ऊपर आए, तो ये टाइप का पैटर्न बनना हमारा जरूरी है। तो ये दो पार्ट में बनाते हैं, एक हाफ यानी ऊपर का कोप हाफ, और ये ड्रैग हाफ, अभी हमने देखा है एनिमेशन में। सो ये स्प्लिट पैटर्न, 2 पीस पैटर्न। तो पहला है सॉलिड पैटर्न, दैट इज सिंगल पीस पैटर्न, दूसरा है स्प्लिट पीस पैटर्न, 2 पीस पैटर्न। सिमिलरली अगर कॉम्प्लिकेटेड है शेप, तो आप 3 पीस पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसा ये देखो, ये ऊपर का एक हिस्सा यहाँ पे लगा है, ये जो है ये देखो, ये ऐसा बना है यहाँ पे, और ये जो बीच बीच में दिख रहा है ना, ये लोकेटिंग पिन है ना, ये लॉकिंग पिन एक दूसरे को, हाँ ऐसा ये पिन है, मतलब ये मेल पिन, ये फीमेल पिन, तो ये एक दूसरे के साथ बैठ जाएगा तो आपका वो पोर्शन हो जाएगा। सिमिलरली ये तीसरा पार्ट देखो, ये इसलिए यूज होता है कि 1 पीस में बनाना कभी कभी मुश्किल होता है, डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू या पैटर्न मेकर के लिए। पैटर्न बनाना भी थोड़ा इजी होना चाहिए ना, दिस पार्ट्स आर इजी टू मेक, दिस पार्ट्स आर इजी टू मेक, टर्निंग वगैरह करके, ओके। तो इसलिए 3 पीस में ये बना दिया। सडन चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इरेगुलर शेप है, कर्वेचर है, तो वो पार्ट थोड़ा सा अलग बनाते हैं और वो उसको जोड़ देते हैं। फाइनली ये जोड़ने के बाद ही जाएगा आपके मोल्डिंग बॉक्स में, और सैंड उसके ऊपर आएगा तो सेम शेप आएगा, हमको फाइनल शेप से मतलब, फिर वो पैटर्न कैसा भी बने। तो ये 3 पीस पैटर्न है। तो हमने देखा सॉलिड पैटर्न, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ओके। एक है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस यानी ये देखो, ये पैटर्न का शेप है, ये पैटर्न का शेप है, और इधर एक अंदर ऐसा प्रोट्रूड है थोड़ा सा पोर्शन। तो ये कैसा बनाने का भाई, ये बनाते टाइम मुश्किल हो जाएगा, तो इसी एक छोटे से शेप का एक अलग बनाते हैं टुकड़ा, उसको करते हैं लूज पीस।
हाँ, केक केक पीस और ब्रेड पीस हम बोलते हैं ना, वैसे एक लूज पीस बनाते हैं और ये पैटर्न ऐसा बनने के बाद वहां पे उसको चिपका देते हैं या फिर उसमें एक पिन रहेगा, उस पिन में ये ऐसा डाल देते हैं। तो ये शेप हो गया और बाद में अपना रेगुलर पोर्शन फील करना, सैंड दबाने का वगैरह। तो सैंड निकालने के बाद सैंड ये होने के बाद प्रेस होने के बाद हम लोग फिर ये पार्टिंग लाइन से हम लोग आधा पोर्शन निकालेंगे और पैटर्न को निकाल देंगे। उसमें फिर ये पोर्शन पहले निकलेगा, इधर का ये जो पोर्शन है ना ये पहले निकलेगा। वो लूज पीस ऐसा ही अंदर रहेगा, किसमें रहेगा, सैंड में। उसको भी ऐसा हाथ डाल के बाद में निकाल सकते हैं, उसको एक पिन रहता है लेने के लिए, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये लूज पीस पैटर्न ये एक कहा गया ऐसा। देन यू वी हैव से दिस इज लूज पीस पैटर्न। ये ऐसा डोटेल शेप है ना अंदर, है? तो ये बनाना मुश्किल जाता है, इसके लिए पैटर्न मेकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा ओपन अगर उसने बनाया मशीनिंग करके तो इजी जाता है, तो वो उसमें डाल देते। तो टोटल अगर बोलेगा तो वो डोटेल तैयार हो गया। ये डोटेल पोर्शन देखो, अंदर का पोर्शन तक एक्सेस नहीं ना अपने टूल का। हाँ, ये शार्प एज वगैरह लाना मुश्किल होता है उसको, वैसे इक्विपमेंट लाना वगैरह, वो टाइप की चीजल, वो टाइप की, उसको कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो क्या करता है, सीधा ऐसा शेप पहले बनाता है मिलिंग करके और बाद में एक एक्सटर्नल पीस ऐसा अलग, एक्सटर्नल पोर्शन कैसा भी आपको टेबल को एंगल देके आप बना सकते हैं कि ऐसा शेप बनाना इजी है एक्सटर्नली। तो वो एक्सटर्नल इजी है, ये इंटरनल काम करते टाइम मुश्किल है क्योंकि टूल एक्सेस नहीं होता है, तो वो उसको जोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका ये लूज पीस। सो दिस इज लूज पीस। ओके, तो ऐसा है। So which pattern you should use? So for that there are certain guidelines. So it is given here. So what we will do, you just read this. After you are reading this, the time is already over. Then we will stop and we will take attendance. Okay. You just go on this, which pattern, when to use solid or single piece pattern, then split pattern and loose piece pattern. So it is given. Okay. Just have a look. I will give you half minute. Anybody want to ask anything? और भी पैटर्न है आगे, हम कल कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। एग्जाम में 7 या 8 बहुत हो गए, आप कोई भी सिलेक्ट करो, आपके सामने ओपन चॉइस है। इट्स लाइक अ बिग शोरूम, आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट करो। इफ आई आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर वेरियस पैटर्न टाइप्स, तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको एक 7-8 पैटर्न बहुत हो गए आपके लिए। टोटल मेरे पास 14 पैटर्न टाइप्स ऑफ पैटर्न। आपको जो अच्छे लगे, आपको जो याद रहे, आपको जिसका फिगर अच्छा ड्रॉ कर सकते हो आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सर हाजरा चौधरी में से भी लाइक सिलेबस के सब टॉपिक्स पढ़ने हैं कि पूरा पैटर्न का चैप्टर पढ़ना है? पैटर्न का चैप्टर पूरा है, वो सिलेबस पर्टेनिंग टू आवर सिलेबस। सिलेबस में जो जो मेंशन किया है ना वो हजरत चौधरी वॉल्यूम 1 में दिया है। बहुत से यहाँ के जो फिगर है ना मैंने हजरत चौधरी से लिए। हजरत चौधरी इज योर टेक्स्ट बुक, सो दैट आई वुड लाइक टू यू टू रेफर। अभी आपके पास किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा, जिसके पास होगा वो गो थ्रू दैट। ओके, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी कब खुलती है क्या वो कम्युनिकेशन मुझे मालूम नहीं। लाइब्रेरी में एम्पल बुक्स है यार, इसके कॉपीज अभी हम जा नहीं सकते, क्या करें। ऐसा मुझे बहुत सी चीज याद है, मेरे पास ऑलरेडी वो नोट्स मेरे पीसी में थे, इसलिए मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। हाँ, बोलो क्या सर ऑर्डर तो कौन सा बुक ऑर्डर करे? कौन सा? हेलो, हाँ बोलो ना। अगर कोई ऑर्डर करना रहेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करना रहेगा कोई बुक, तो कौन सा बुक ऑर्डर करे? मैंने वो लिस्ट दी है ना, वो पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था ना पहले लेक्चर में, तो एट द एंड ऑफ दैट प्रेजेंटेशन कौन से मॉड्यूल को कौन से बुक वो लिख के दिया है ना बेटा, वो जरा प्रेजेंटेशन देखना मेरा। ओके ठीक है बाकी बच्चों को तो भी मतलब आप जैसा रेफर करेगा, मतलब यही मतलब वो प्रेजेंटेशन आपको भेजा है क्या मैंने, पहला जो सिलेबस वाला भेजा है क्या कल? अगर नहीं भेजा तो उसका पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा वो सब। क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग बुक्स है।
And I am using Indian books only, but standard books. फॉरेन बुक्स में आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपको एक्सेस नहीं होगा ये पीरियड में। तो ये जो बुक्स है अभी इंडियन बुक्स जो है, ये हम लोग जैसे एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ फाउंडेड टेक्नोलॉजी बाय हाइन रोजेंथॉल, हाई लेवल का बुक है ये, आईआईटीज में वगैरह हमने यूज किया है। तो उससे अच्छा है हम लोग हजरत चौधरी को रेफर करें, एटलीस्ट वो तो पूरा करो। वो होने के बाद हम देखेंगे, और आपको अगर कुछ मटेरियल चाहिए तो मेरे पास कभी भी आप बोल सकते हो सर ये हो गया, is there anything more to refer? I will tell you many books, I will tell you. So ये पहले मॉड्यूल के लिए हाजरा 1 is the best, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में हाजरा चौधरी। तो ये बुक कहीं से मिलता है तो देखो। अभी ये Do you have a soft copy? नहीं 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 नहीं, उन्होंने वो कमर्शियली है बेटा, वो मैंने ढूंढा, वो नहीं मिली। आप लोग फिर से ट्राई करो, वो कहीं दे रहे क्या। अगर उसके सॉफ्ट कॉपी और वो कुछ चार्ज कर रहे हैं तो वो भी देखो, वो कुछ डॉलर्स में है क्या, रुपीज में है क्या, वो कुछ जरा देख लो। वो इंडियन वर्जन है। पहली बात तो ये इंडियन वर्जन के सॉफ्ट कॉपी थोड़ा मुश्किल है, जो पॉपुलर है वो। फिर भी आप ढूंढो, क्योंकि ये क्या होता है, हर एक अभी कोरोना पीरियड में अगर शायद उन्होंने किया होगा, तो टाइप करो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बाय हजरा चौधरी वॉल्यूम 1 फॉर आवर फाउंड्री। ओके देन बच्चों आपसे अटेंडेंस लेता हूँ मैं। डोंट गो एनीवेयर एंड डोंट क्लोज योर दिस थिंग, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। ओके, तो डाउनलोड अटेंडेंस शायद हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा आता नहीं है कि डाउनलोड हो गया वगैरह। जस्ट मिनट, आई विल चेक इन द फाइल। ओके, एंड देन यू गो इन फाइल, हो गया डाउनलोड्स, मीटिंग अटेंडेंस जस्ट नाउ डाउनलोडेड। हाँ बच्चों हो गया। नाउ यू कैन डिपार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। when is our next lecture by the way? Do you know when is our next lecture? Before coming to next lecture, you read some these patterns etc. and then you come, so we can have a better discussion. It is a participative type discussion. आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आप बेझिझक पूछो। हाँ, तो we will go now. Okay, सब कल 9:30 को। क्या हुआ? टुमारो 9:30 को लेक्चर है। tomorrow 9:30 ना? Okay, we will meet there and we will continue. थोड़ा सा पढ़ के आओ अगर हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर एक डाउट सर, अगर कोर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो सर कैसे मोल्ड बनाएंगे? मतलब कोर और ऑब्जेक्ट नहीं सर, कोर ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास नहीं है, मतलब बनाना ही नया ऑब्जेक्ट है जो अवेलेबल नहीं है, तो पहले वो उसके बिना मोल्ड कैसे बनाएंगे? अरे बाबा, उसका ड्राइंग है ना अपने पास। जो 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 पोर्शन हमको बनाना है उसका ड्राइंग तो है ना हमारे पास। तो वो ड्राइंग पैटर्न मेकर को देते हैं। देन पैटर्न मेकर वो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखता है कि इसका पैटर्न कैसा बनाया जाएगा। सो इट इज अप टू पैटर्न मेकर। तो अगर 1 पीस में बनता है तो 1 पीस में बनाएगा, कॉम्प्लिकेटेड है तो ये है नहीं क्या अभी मैंने दिखाया 2 पीस 3 पीस, ऐसा कुछ तो करके वो उसका शेप बनाएगा। और वो शेप हम पैटर्न बोल के यूज करके उसका कास्टिंग बनाएंगे और फिर वो मशीनिंग करेंगे। तो पैटर्न मेकिंग इसीलिए तो मैं बोला स्किल का काम है बेटा। और खास करके ये जो है ना, ये पिंस वगैरह रहता है, वो कार्बोरेटर वगैरह के डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो बनाते टाइम इसीलिए तो पैटर्न मेकर इज अ स्किल जॉब, इट इज नॉट इजी जॉब। आई हैव सीन दैट एंड द सेम थिंग जो तुम जो बोल रहे थे वो मेरे माइंड में भी आया है। स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, बेस तो ये बना तो कैसा है, तो ड्राइंग से वो उसको ये करना पड़ता है। ये तो ऐसा है भाई पैटर्न का कि जैसे तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, पुलिस वाला बोलता है ये आदमी कैसा था, तो उसका एक पिक्चर निकालने वाला आदमी रहता है, फिर तो बोला था उसका थोड़ा आँख ऐसा था, वो वैसा था, एंड ही पिक्चर है। इट इज द सॉर्ट ऑफ दैट स्किल। तो पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न इज नॉट ए इजी थिंग। मीन्स उसको तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा पैटर्न मेकर को। सिंपल है तो बात अलग है, बट कॉम्प्लिकेटेड है तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। और अच्छा मैंने ये बंद किया क्या रे अभी? जस्ट अ मिनट, आई हैव टू क्लोज दिस आल्सो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये भी एक है, ये भी भूल जाता हूँ कभी कभी मैं, नया है ना सिस्टम। So I am stopping the recording now. So we will tomorrow we will meet and
tomorrow you can ask your questions also. There is no problem. We have ample time. So I am stopping. So goodbye बच्चों. जय